Good morning students, welcome back to our online sessions of Maths class 9. Now before we discussing about the new chapter, I hope you and your family will be fine in this pandemic situation. So I requested without unnecessary work, don't go outside your home. So stay home, stay safe. Now while providing the digital study medium of the online education system, we already discussing about the 2 or 3 chapters before on the standard 9 syllabus, in which chapter 1, chapter 2 and chapter 15 that we have to already discuss. Now today we will discussing about the new lessons, that is very small lessons, that is called coordinate geometry. That is chapter number 3 in your NCERT textbook syllabus of standard 9. Now first of all, a part of the geometry is what? Generally considered geometry means what? The measurement of the all 3 sides of generally considered as geometry. Geo means measure, metry means measurement, earth measurement. Geo means earth, metry means measurement. The earth measurement is a part of the geometry. Now what about the coordinate? Coordinate means what? Generally if we consider coordinate is what? Generally when you draw a graph while using the x and y axis, having a specific starting origin point and having a specific point where the line particularly goes. That is generally called as a coordinate between the 2 points. So you have already learned about the number system in the chapter number 1, how the numbers that can be represented onto the number lines. Okay, it may be a numbers as a part of rational numbers or irrational number that generally represented onto the number line. Also, we have to be implement some of the properties like addition is there, subtraction is there, which are the properties generally we have to implement it onto the number lines. So that we are discussing into the previous classes. Also, we are discussing how this type of the numbers in a single variable like linear equation in one variable that can be represented onto the number line. While in the chapter number 2, that is called polynomial, in we discussing about the polynomial having a 3 terms based on their powers, that is called linear, quadratic and cubic. So linear equation having a one variable always be denoted the value as a part of the number system. So linear equation in one variable, it means they have only one variable, it may be x or it may be y. If you find any equation like 2x minus 3 is equal to 7, so 2x minus 3 is equal to 7, there is only one variable in maximum power 1, so it is called linear equation. So 2x minus 3 is equal to 7, when you solve this equation you will get x equal to 5. So x equal to 5 what? When you represent the x equal to 5 onto the number line, we have only required only x axis. Okay, like for example 2y minus 3 is equal to 7, then y equal to 5, then we require only one line y. So it may be required the x coordinate or maybe the y coordinate, but don't require the both. So linear equation in one variable that can be easily denoted onto the number line. But what about the 2 variables are there? If x is there and y is there, so how can you classify the x and y coordinate? So if the linear equation in 2 variable, it may be x coordinate and y coordinate is there, then we have to be particularly draw graph of horizontal and vertical line system, x coordinate and y coordinate. So for example, if I will draw a true formation of horizontal and vertical system of x and y coordinate, how it can be implemented? That is called x, that is called y, that is called x dash, that is called y dash, and where this line intersect, that is called origin O. That is called origin O. So while using of the number system, if you know about the number system, there is only one line is there in a number system, that is point origin 1, 2, 3 and 4, minus 1, minus 2 and minus 3, x and x dash. Okay? So that is what? That is O is what? It is part of origin. It is generally considered as a origin point. O is generally on a number system, that is considered as origin point. And distance between 1 and 2, okay, that is the distance 1 unit. Okay, that is distance is what? Generally 1 to here 2, that generally describe the 1 unit. Also you can be describe here is also 1 unit, minus 1 to minus 2. So when you are moving on a left hand side on a number system, that will be provided with the negative numbers, which is called x dash, and while moving on a right hand side which denoted the positive value, that is called x.
So OX generally denoted the positive value while OX dash denoted the negative value. It having a 1 units as a part of the distance, O is considered as the origin. But for example, why this type of number system is required? If I'll take one example, that when you are moving on a road, there is only one street. There is only one street and we are moving. So while moving on that street, and if you want to go your friend's house, you only need to remember their house number if there is a single street, okay? But if more than one street are there, like street 1, street 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 streets are there, while you go into the multi-cities or maybe a metro cities, there is a more than one part of the street that should be available. So when you want to move your friend's house, you don't remember only the house number, because a house number that have been similar to each and every numbers, but street number will be changed. So अगर स्ट्रीट 1 पे 1 to 10 अलोकेटेड हाउसेज है, स्ट्रीट 2 पे भी 1 से 10 हाउस है, स्ट्रीट 3 पे भी 1 से 10 है, वैसे स्ट्रीट 8 तक 1 से 10 नंबर्स हैं, यानी टोटल 80 हाउस स्ट्रीट 8 और हर एक स्ट्रीट में 1 से 10 हाउस नंबर है। तो केवल मैं 5 हाउस नंबर याद रखूँगा कि मेरे फ्रेंड का हाउस नंबर 5 है, तो क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 5 नंबर के हाउसेस तो बहुत सारे हैं उस सिटी के अंदर, तो उसके लिए मुझे स्ट्रीट नंबर भी याद रखना पड़ेगा कि सपोज स्ट्रीट 4 पे हाउस नंबर 4 ये मेरा फ्रेंड का है। सो दिस टाइप ऑफ द फॉर्मेशन जहाँ एक से ज़्यादा नंबर्स को भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें आपको रिप्रेजेंटेड करना पड़ता है। तो कभी भी जब आप कार्टेशियंस कन्वर्जेशंस के कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग टू जब आप नंबर सिस्टम को प्लॉटिंग करते हैं, तो जब नंबर सिस्टम को आप प्लॉटिंग करते हैं ना, तो उसमें एक्स वाई एक्स डेस और वाई डेस ऐसे नंबर्स मिलते हैं। ये जो एक्स नंबर्स होता है एक पॉजिटिव फॉर्मेशन को कंसिडर करता है 1, 2, 3 एंड 4, और ये जो होता है वो नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपका नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर करेगा, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। सो जब भी आप नंबर सिस्टम पे जब आप ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं, तो उसमें आपको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है। ये x और y कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं वो आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। ये आपका हो गया ओरिजिन, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। कभी भी जब आप नंबर को प्लॉटिंग करते हैं, ग्राफ का जब रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन पे मुझे नंबर्स को प्लॉटिंग करना होता है। तो नंबर्स को प्लॉटिंग करने के लिए वहाँ पे 2 कार्टेशियंस कन्वर्जेशन पॉइंट्स होने चाहिए, जिसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए और एक वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो जैसे आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इनको जब आप इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होते हैं। इसको आप कहेंगे क्वाड्रेंट 1। ये जो पहला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1। ये जो दूसरा पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2। तीसरा पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3। और ये होता है क्वाड्रेंट 4। 4 अलग अलग सेक्शंस में आपके डिवाइडेड हो जाते हैं। जैसे ही आप x और y कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो 4 अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइडेड होता है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। अब ये चारों 4 क्वाड्रेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं। तो कभी भी आप कार्टेशियन कन्वर्जेशंस में आप नंबर्स को प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ पे, तो सबसे पहली वैल्यूज़ जो होती है वो x कोऑर्डिनेट की हम डिराइव करते हैं। x कोऑर्डिनेट हमें बनाना पड़ता है। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर मुझे डिराइव करनी होती है, तो कोई भी वैल्यू अगर आप प्लॉटिंग करेंगे तो पहला x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x इफ पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट पे मेरे पास प्लस वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट पे भी मेरे पास प्लस वैल्यू है। तो क्वाड्रेंट 1 मेरे को दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेंगे। क्वाड्रेंट 1 मुझे दोनों क्या मिलेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। उसी तरह अगर आप क्वाड्रेंट 2 को देखेंगे, तो क्वाड्रेंट 2 पे पहले आपको x लिखना होगा, फिर y लिखना होगा। तो x क्या है आपके पास? नेगेटिव है, और y क्या है? पॉजिटिव है। तो क्वाड्रेंट 2 के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आती है। उसी तरह क्वाड्रेंट 3 पे आते हैं, पहले आपको x कोऑर्डिनेट देखना है, फिर y कोऑर्डिनेट देखना है। तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो दोनों आपके नेगेटिव क्वाड्रेंट मिलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम मूव करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर आप देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव और y आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स आपको मिलेंगे। तो जैसे आप कार्टेशियन कन्वर्जेशन पे x और y कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं,
तो अलग अलग 4 कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और चारों कोऑर्डिनेट्स में पहले क्वाड्रेंट पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट पे नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तीसरे पे दोनों नेगेटिव होगा और फोर्थ पे आपका पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो कभी भी आप कार्टेशियन कन्वर्जेशन के हिसाब से ग्राफ को प्लॉटिंग करेंगे तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होगा और फिर आपको वाई कोऑर्डिनेट लिखना होगा, उस हिसाब से आप नंबर्स को प्लॉटिंग कर सकते हैं। चलिए अभी हम नंबर्स को प्लॉट करने को ट्राई करते हैं, कैसे मुझे नंबर्स प्लॉटिंग करने हैं और इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मेशन दिया है कि नंबर प्लॉटिंग कैसे हम करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक टॉपिक समझा देता हूँ कार्टेशियन सिस्टम के बारे में। उससे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम समझते हैं, फिर हम उसके बाद प्लॉटिंग पे जाएंगे। उस पर एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। नाउ कार्टेशियन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि अब उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे कार्टेशियन सिस्टम में यहाँ पे मुझे दिया है ए की वैल्यू 1 2 3, ऐसा मुझे दिया है ए की वैल्यू 1 2 3 और मुझे ए स्क्वायर को प्लॉट करना है ग्राफ पे। प्लॉट ऑन अ ग्राफ, प्लॉट ऑन ग्राफ। ए स्क्वायर को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो ए स्क्वायर में कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे। देखो ग्राफ प्लॉटिंग अगर करना है तो ग्राफ प्लॉटिंग कब होगा? जब हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास होगा तभी आप ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कार्टेशियन कन्वर्जेशन के हिसाब से मुझे ए स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए, ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ए स्क्वायर मिलेगा। ए की वैल्यू है उसको सेम ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ए क्रॉस मिलेगा। तो 1 2 3 इंटू 1 2 3, राइट। तो सेम एलिमेंट्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने प्लॉटिंग्स होंगे? चलिए पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 2 और 3 3। ये आपके ग्राफ प्लॉटिंग्स होंगे, ठीक है। तो अगर हमें कार्टेशियन कन्वर्जेशंस में अगर नंबर सिस्टम को ग्राफ में हिसाब से प्लॉटिंग करना है तो अगर स्क्वायर है तो आप इसको कार्टेशियन सिस्टम ए क्रॉस ए ऐसा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस ए। तो सेम एलिमेंट्स को सेम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए क्रॉस ए मिलेगा। तो एक ग्राफ को प्लॉटिंग करने के लिए ए आपके पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ए अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स होगा तभी आप ग्राफ को प्लॉटिंग कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फॉर्म। या फिर जैसे मान लीजिए कोई दूसरा नंबर दिया हो, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए फाइंड करना हो। जैसे दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू ले लीजिए 2 4 6 है और बी की वैल्यू 1 3 5 है, ठीक है। और मुझे ग्राफ पे ए क्रॉस बी क्रॉस ए और बी स्क्वायर ऐसे 3 अलग अलग सब्सटेंसेस जो हैं पार्ट ऑफ एलिमेंट्स को मुझे ग्राफ पे प्लॉटिंग करना है। तो मुझे अगर ए क्रॉस बी क्रॉस ए और बी स्क्वायर अगर ग्राफ पे प्लॉटिंग करना है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यानी ए के एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 6 इंटू 1 3 5। ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होगा आपको। पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब तक आप इसको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट नहीं फाइंड करेंगे, जब तक आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं होगा, आप उसको पर्टिकुलरली ग्राफ के फॉर्म में या जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है आप उसको डिनोटेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे आप इसको डिनोटेट कर सकते हैं कार्टेशियन कन्वर्जेशन में। तो जब तक ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे वी कैन नॉट बी प्लॉटिंग द पर्टिकुलर नंबर ऑन टू द ग्राफ। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम अलग अलग नंबर्स जो है उसको ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं। कैसे प्लॉटिंग करना है वो क्वेश्चन एक देखते हैं। द प्लॉटिंग द नंबर्स, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। प्लॉट द नंबर्स। नाउ अभी जो एक एग्जांपल लेंगे उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्मेशन में।
प्लॉटिंग द नंबर्स ऑन ग्राफ। ग्राफ पे हमें नंबर्स को प्लॉट करना है, ठीक है। उसमें अलग अलग पॉइंट्स लेंगे। एक लेते हैं 1, 5, एक लेते हैं -3 और -6, एक लेते हैं हम 3 और -5, एक लेते हैं -4 और 6, ठीक है, और एक लेते हैं 0 और 8। चलिए सब 5 अलग अलग नंबर्स लिए, ये पांचों नंबर्स को मुझे प्लॉटिंग करना है। तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ग्राफ, पेपर पे ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें x और y कोऑर्डिनेट आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट O होगा, ये x होगा, ये y होगा, ये x डैश होगा और ये y डैश होगा। तो नंबर्स अगर हमें प्लॉटिंग करने हैं तो मुझे x और y कोऑर्डिनेट दोनों होने चाहिए। पहला जो नंबर्स होता है वो ऑलवेज भी x कोऑर्डिनेट को इम्प्लीमेंट करता है और दूसरा होता है वो y कोऑर्डिनेट को इम्प्लीमेंट करता है। मैं सारे नंबर्स यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए पहले तो अगर मुझे ग्राफ को प्लॉटिंग करना है तो मैंने सारे नंबर्स को एज अ पार्ट ऑफ ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 नंबर को प्लॉटिंग करना है। पहला नंबर है 1 और 5, यानी ये हो गया x और ये हो गया y। तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव 1 ये रहा और y 5 ये रहा। तो मुझे क्या करना होगा, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी और यहाँ से ऐसे नाम बनाना होगा। इसका नाम दे दो a और दे दो 1 और 5। तो पहला आपने प्लॉटिंग कर दिया। दूसरा है -3 और -6। -3 यानी x एक्सिस और -6 यानी y एक्सिस। ये नंबर्स को आपको ज्वाइन करना होगा सिंपली, ठीक है। इसका नाम दे दो b। कौन सा कोऑर्डिनेट है, -3 और -6। तीसरा पॉइंट है 3 और -5। 3 x एक्सिस और y में -5 आपका y एक्सिस। तो यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए c। ये हो गया 3 और -5। फोर्थ क्या है, -4 और 6। -4 ये रहा और 6 यहाँ पे है, उसको ज्वाइन करना है आपको। ये हो गया d, -4 और -6, फिर 0 और 6 है, ये 0 और ये 6, ठीक है। ऐसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जनरली किसी भी नंबर्स को अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉटिंग करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पर्टिकुलरली x और y कोऑर्डिनेट चाहिए। x और y कोऑर्डिनेट को ही आप इस हिसाब से नंबर में प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्टेशियन का पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे आप इसको कार्टेशियन फॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, कौन से 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट बनते हैं और कैसे नंबर को आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको समझ में आया होगा। सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है बुक के अंदर जो एग्जांपल दिए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। We'll meet you tomorrow for other topics about this geometry. Till students, take care, and using your digital knowledge, just improve your knowledge and try to practice more and more questions like this coordinate geometry. Till take care, stay home, stay safe, bye.